everyone. Welcome to today's live chat with Mom Anjali Kunte. So I am Mom Angel here by Ravi. I'm an NLP coach, life coach, and an author. So I have been dealing with a lot of people, and it's nice to see the transformational journeys. Along with me is Miss Anjali, who has also done a lot of transformation. Today, this event has been organized by Moms Multitasking Outstanding Mother Space and in collaboration with Beyond Imagination Club. So, we are here to support each other and grow. This community is there as a backing which helps to contribute not only to the community and society but also to Mother Earth. So let us welcome Ms. Anjali Kunte, a fantastic personality and a beautiful coach, which is rarely seen. Welcome, ma'am. Welcome to the show. Thank you so much for inviting me today to have a heart-to-heart talk. I'm really blessed to be with all of you. Thank you so much and welcome. So, let us know how you started this, because this is a sport which जहाँ ज़्यादातर women जाती नहीं है. कि स्पोर्ट्स में जाना, हॉकी खेलना, बैडमिंटन खेलना और वहाँ पे कोच बनना, तो ये आपने कैसे शुरू किया? How did all this start? Yeah, so it was actually मैं पहले से ही I have been a sporting person. My parents always encouraged me कि कुछ ना कुछ खेलो, क्योंकि खेल में ही हम हार जीत सीख सकते हैं. हारे तो भी फिर से अपना नेक्स्ट गेम इज देयर, कीप ट्राइंग. से ये लाइफ के लेसन्स बहुत सारे स्पोर्ट्स में हमें सीखने को मिलते हैं कि हाउ टू नॉट फील डिफीटेड, आई मीन इन योर माइंड इवन इफ यू आर डिफीटेड. सो पहले से हमें स्पोर्ट्स में थी. माय फादर हैड अ वेरी ट्रांसफरेबल जॉब, सो वी यूज्ड टू मूव फ्रॉम सिटी टू सिटी एंड आई वाज पुट इन अ कॉन्वेंट स्कूल. सो कॉन्वेंट स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा रहता है, तो वहाँ मुझे हॉकी, आई पिक्ड अप हॉकी एंड समहाउ एनी गेम आई पिक अप वेरी फास्ट. सो हॉकी भी मैंने स्कूल रिप्रेजेंट किया. देन इन अहमदाबाद, देन आई रिप्रेजेंटेड स्टेट, गुजरात स्टेट के लिए मैंने कुछ मैचेस खेले एज अ सेंटर फॉरवर्ड. एंड देन अगेन माय फादर गॉट ट्रांसफर टू मुंबई, एंड मुंबई एज यू ऑल नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ स्पोर्टिंग क्लब, और हॉकी मेरा छूट गया वहाँ. तो 3-4 साल मैं मुंबई में थी, तब मुझे कुछ मिला नहीं. लेकिन व्हेन वी शिफ्टेड टू पुणे, अगेन वो कीड़ा मुझ में आ गया कि कुछ तो खेलना है. तो हॉकी के लिए प्रिंसिपल जाना था, तो वो मैंने नहीं किया. फिर आई टुक अप, वी हैड एन ओल्ड बैडमिंटन रैकेट, दैट वाज व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 18-19 इयर्स ओल्ड. We had an old बैडमिंटन रैकेट जिसमें वो फ्रेम रहती है. इन मॉनसून सीजन उसकी शेप बदल जाती है, उसमें फ्रेम रहती है. तो वो रैकेट लेके मैंने शुरुआत की. I have never taken any training in badminton. I have always watched other people play, और मैंने किया है. I joined some groups and I started playing. One of my cousin brother had given me a book on badminton. उसमें वो ग्रिप कैसे पकड़ते हैं, स्ट्रोक्स कैसे खेलते हैं, उसके पिक्चर का एक्सप्लेनेशन था. उसके हिसाब से मैंने सीख के I started playing, and then I started representing college in badminton. I was representing my college BMC in badminton, cricket and hockey. तो क्लास में ज्यादा मैं बैठी नहीं थी. I was playing all those things. और फिर उसके बाद that's how I started badminton. Being a individual sport, my parents encouraged me to take that up more seriously, because cricket और hockey के लिए आपको टीम मिलनी चाहिए, और एक एज के बाद you cannot pursue that sport. That is why फिर मैं बैडमिंटन की तरफ मुड़ी. I have never stopped playing even in my pregnancies में. फिर सिर्फ वो चाइल्ड बर्थ के टाइम, लेकिन I was playing almost throughout that process, and that's how I went into badminton. And धीरे धीरे वो गेम इतना अच्छा मुझे आने लग गया कि I started playing for clubs. Then I took part. Even after during marriage, I had only one condition कि मुझे खेलना कंटिन्यू करना है, मुझे कोई रोकना नहीं चाहिए. मैं हफ्ते 2 घंटे खेलना जाऊंगी. आपके in-laws and आपके husband. That was my pre-condition actually. मैंने हर एक को, जिनके हमारी अरेंज मैरिज है, तो जो भी लड़के मैं देखती थी, मैं देखती थी आप कुछ भी करो, मुझे बैडमिंटन छोड़ना नहीं है. I will marry a person who will allow me to play badminton. That I had absolutely clear in my mind. I am not a घरेलू type of lady. किचन में और ये सब ना, हमारे मराठी में कहते हैं रांधावाड़ा उष्टी काढ़ा, उसमें से मैं नहीं हूँ. वो सब मैं करूंगी, सीखूंगी, लेकिन मुझे मेरा स्पोर्ट चालू रखना ही है. I was quite firm about that. And
So the person who said yes to that, I married him. That's how it From happened. being a player to coach, how did your journey switch over? That also is an interesting thing. So हमारे 2 बच्चे हुए और उसके बाद बच्चों के टाइम पे मैं कुछ ज्यादा करती नहीं थी, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मेरे ब्रेन पे कुछ रस चढ़ने वाला है अभी। मैंने कुछ सिर्फ ABCD आने वाली है, मुझे कुछ और आने वाला नहीं है बच्चों के साथ रह के। तो then I started doing some website designing की किताबें लाके। No, whatever I have done in my life, I have done it through self learning. Mostly I have never taken any formal training in anything, लेकिन उसमें excel हो गई। तो उसी टाइम वेबसाइट डिजाइनिंग ये सब करती थी, एंड आई वाज आल्सो प्लेइंग बैडमिंटन, एंड देन आई वाज How long ago वेबसाइट डिजाइनिंग आप जो बोल रहे हैं, कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? 2000 95 96 जब वेबसाइट क्या होती है बताना पड़ता था कि क्यों आपने लेनी चाहिए। हम कॉर्पोरेट्स में जाके बताते कि क्यों वेबसाइट की जरूरत है आपको, कैसे आपके ऐड हो सकते हैं। तब वेबसाइट पे स्टैटिक, उसमें इंटरैक्टिव नहीं था ज्यादा, तो तब मैं वो करती थी। एंड देन बैडमिंटन प्लेइंग भी चल रहा था। फिर हमारा सेकंड बेटा जब उसका ही वाज बोर्न, so he had some respiratory issues like asthma and all that, and we from his first year of birth, I mean पहले जन्मदिन को ही उसका अटैक आ गया, and उसके बाद for almost 17-18 years he's been suffering with those things. तो वो जब 8-9 साल का था तब मुझे ये I mean this was not acceptable to me that मेरे बच्चे नहीं खेलते। मैं खेलने जा रही हूँ लेकिन मेरा बड़ा बेटा तो खेलता था, लेकिन छोटा वाला खेल नहीं सकता है, तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी और के पास उसे भेज नहीं सकती, बिकॉज आई नो हिज कंडीशन मोस्ट वेल। सो देन फॉर हिम, सो दैट ही इज एबल टू प्ले एंड ही शुड बी प्लेइंग समथिंग, बिकॉज मुझे मेरे मन में एकदम क्लियर है कि वी डोंट स्टॉप प्लेइंग व्हेन वी ग्रो ओल्ड, वी ग्रो ओल्ड व्हेन वी स्टॉप प्लेइंग। कुछ भी हो, Well said. और खेल होना ही चाहिए हर एक के लाइफ में, कुछ ना कुछ, समथिंग, सम हॉबी, समथिंग। तो इसलिए मैंने बेटे के लिए कोचिंग स्टार्ट की, और उसके लिए स्टार्ट की तो और भी बच्चे आने लग गए, एंड देन दैट्स हाउ इट रियली went on. I mean it was never planned, but that's how it happened. Okay. तो आपको बच्चों का, हस्बैंड का, सबका अच्छे से सपोर्ट मिला एंड यू कुड मूव ऑन? इनिशियली नहीं, बिकॉज मेरे कोचिंग बैचेस बहुत लेट तक चलते थे, 8:30-9 बजे तक। तो घर में थोड़ा सा उसके अनबन होती थी कि पहले तो उनको थोड़ी आदत सी थी। मेरे हस्बैंड का ही खुद का बिजनेस है, सो व्हेन ही यूज्ड टू हैव लॉन्ग आवर्स, सो खाने पीने का, कुकिंग का मेड रखी थी, लेकिन वो टाइम पे नहीं आती थी तो खाना नहीं बनता था। ये सब इश्यूज हो रहे थे, बट आई वाज क्वाइट क्लियर कि नहीं, मुझे करना ही है, विल फाइंड सम सॉल्यूशन। यानी आई टोल्ड माय हस्बैंड कि नहीं ये मेरे बेटे के लिए, हमारे बेटे के लिए मुझे करना ही होगा। सो ही सपोर्टेड मी इनिशियली। थोड़ा सा हर एक को ना आदत नहीं रहती है, वाइफ कहीं बाहर जाके और हमें खाना नहीं मिल रहा है, मैं थक हार के घर आ रहा हूँ, मुझे टाइम पे नहीं मिल रहा है कुछ, तो वो थोड़ा इनिशियली हुआ। लेकिन इफ यू स्टैंड योर ग्राउंड, इट्स व्हाट आई फील, इफ यू एक्सप्लेन टू देम कि भाई यू आर डूइंग समथिंग एंड भाई यू नीड देयर सपोर्ट एज वेल, बिकॉज वो जब उनके बिजनेस चल रहा है तब हम भी सपोर्ट करते हैं ना उन्हें, तो जब मैं कुछ कर रही हूँ तो उन्होंने भी सपोर्ट करना चाहिए। तो टीम वर्क, आई मीन वी आर इक्वल इन अ मैरिज, इट्स अ टीम वर्क, एंड दैट्स हाउ ही आल्सो स्टार्ट सपोर्टिंग मी। और बच्चों को तो आदत थी कि माँ सब करेगी पहले 5-6 साल, लेकिन उसके बाद दे बिकेम इंडिपेंडेंट, दे स्टार्टेड सपोर्टिंग मी। एंड इतना हुआ कि मेरी बैडमिंटन कोचिंग क्लासेस इतनी बढ़ गई कि 8-8 घंटे में करती थी। और आज ये सिचुएशन है कि मेरे वो छोटा बेटा जिसके लिए मैंने ये सब किया, उसकी हेल्थ तो सुधर गई है, उसी के कारण मैं न्यूट्रिशन में भी घुसी, बिकॉज मैंने ये समझ रहा था कि वो इतना सारा खेल रहा है तो उसको फिटनेस भी होना चाहिए, और खाने में से मिल नहीं रहा है, क्योंकि खा नहीं पाता था, बहुत सारी मेडिसिन थी। तो इसलिए मैं न्यूट्रिशन की किताबें फिर ले आके बहुत ज्यादा उसकी पढ़ाई की, और उसी तरह मैं न्यूट्रिशन में भी आई। और आज आई एम हैप्पी टू से कि वो बेटा जो मैकेनिकल इंजीनियर बना, एक मंथ के लिए उसने जॉब भी की, लेकिन टुडे ही हैज टेकन अप बैडमिंटन कोचिंग एज अ प्रोफेशन एंड ही हैज असिस्टेंट्स अंडर हिम, and that small thing which I started so that he can play has become a source of good income for him. It's his passion now, and he had the choice to choose between a job and this profession. That was because of I took that decision that time. I feel blessed for that. ब्यूटीफुल। आपने ये सपोर्ट की बात करी, तो अभी आप ये मॉम्स ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं, तो हाँ। आपको यहाँ पर क्या लगता है, किस तरह का सपोर्ट मिलता है, कैसे ये एडवांटेजेस होता है, या कैसे लोगों को इसके साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए? See,
या वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली मॉम्स का ग्रुप एक्सीडेंटली आ गए. मेट संजू गुप्ता इन नोएडा एंड देन शी सेड व्हाई डोंट यू जॉइन द ग्रुप. सो एक्चुअली मेरा पहले से ये थॉट प्रोसेस था कि नहीं, लेडीज का ग्रुप होता है ना, वो सिर्फ या ना मूवीज और ज्वेलरी और ये ढिशी और ये किटी पार्टीज टाइप ऑफ थिंग्स रहती हैं. तो मेरा उसके बारे में आया वेरी नेगेटिव थॉट प्रोसेस कि नहीं, वो लेडीज कुछ करती नहीं है हस्बैंड के. आई मीन आई एम सॉरी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो उनका वही इतना दायरा रहता है, बच्चों के मार्क्स, स्कूल, ये कब होगा, ये सोशल कंडीशनिंग. हाँ, तो वही उसी में दायरे में रहते हैं. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मुझे ये सास बहू के गप्पे ये नहीं अच्छे लगते. ये सास ने ऐसा किया, बहू ने, आई डोंट लाइक इट. सो इनिशियली आई हैड इनहिबिशंस की उन्होंने कहा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया. लेकिन आई हैड थॉट कि नहीं, 2-3 सेशंस अटेंड कर दूंगी उसके बाद आई क्विट. लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि नहीं, दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. I mean, everybody is doing something. Though that person is a housewife, it's no problem with being a housewife. But that outlook of a person who is trying to grow oneself, ना कुछ आप सीख रहे हो, कुछ ना खुद को बेहतर कर रहे हो, वो इंस्पिरेशन यहाँ मिल रही है हर एक को. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड द सेशंस वी हैव, हाँ, हम लेडीज टाइप बात भी करते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मॉम्स ग्रुप में ये पता चला कि ऐसे भी लेडीज का ग्रुप हो सकता है जो कुछ पर्सनल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहा है, कुछ और लेडीज को हेल्प कर रहा है. इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है. दिस इज टोटली वॉलंटरी है. एंड आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग दोस थर्सडे सेशन. दो आई वुड लाइक टू डू सम मोर हियर. आई एम टाइम कंस्ट्रेंट है, इसलिए मैं ज्यादा कर नहीं पाती हूँ. लेकिन आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी. ये टिपिकल लेडीज ग्रुप नहीं है. दिस इज अ हैपनिंग सेल्फ डेवलपमेंट का ग्रुप है, इज व्हाट आई फील. एंड दैट्स व्हाट आई फाउंड हियर. Yes, same here. Even I found that. And आप जाते जाते आप मुझे ये बताइए कि आप एक हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मॉम्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? तो मैं ये मैसेज दूंगी जो मैंने किया है कि सेल्फ लर्निंग आज के जमाने में, जैसे मैंने कोचिंग का कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है, लेकिन आई हैव डिलीवर्ड. न्यूट्रिशन का भी मैंने सर्टिफिकेट कोर्स बाद में किए 2-4 छोटे मोटे, जस्ट टू गेट सम थिंग्स टू अंडरस्टैंड. बट मोस्ट ऑफ इट 90% मैं कहूंगी मेरा सेल्फ लर्निंग है. तो देयर इज नथिंग टू स्टॉप यू टुडे. एक्चुअली गूगल है, हर एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें आप वहां से भी सीख सकते हो. इतना ही है कि आपके पास रेजिलियंस होना चाहिए, यानी जिसको कहते हैं ना टिके रहने की. यानी अड़चने आएंगी, बहुत सारी आती हैं, फाइनेंशियल हो सकता है, ये वो. लेकिन अगर घर की लेडी इफ शी स्ट्रांग, देन द फैमिली बिकम स्ट्रांग. मैंने देखा है कि जिस घर में माँ को कीमत नहीं मिलती, जहाँ उस माँ का कोई सुनता नहीं है, वहाँ के बच्चे भी नहीं अच्छे रहते. आई मीन उनकी ग्रोथ भी नहीं अच्छी होती है. सो एज अ मदर we have to become strong. We should have opinions about certain things. We should be well read. Only then we can guide our children in a better way. So हर एक माँ को मैं कहूँगी, आप टिपिकल हाउसवाइफ बन मत रहना. अपने खुद के फाइनेंसेस हमें डील करने आने चाहिए, अपने खुद के एनीथिंग. आई मीन वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट. इमोशनल डिपेंडेंस तो रहेगा हमारी फैमिली पे, अदरवाइज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. वेरी वेल सेड. थैंक यू सो मच अंजलि जी. आज आपने बहुत अच्छे से अपनी जर्नी भी बताई एंड यू टोल्ड अस द फैक्ट कि भाई हाँ, हम लोग एक दायरे में सिमट कर रह जाते हैं, तो उस दायरे से बाहर निकलना है एंड वी नीड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्फ एज अ यूनिट. तो हमारी की सेल्फ इमेज अच्छी होगी, तभी हम उस चीज को बाहर भी पोर्ट्रे कर पाएंगे. यू सेड इट. तो वेरी वेल सेड. तो मैं सभी मॉम्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी जो भी इस प्रोग्राम को देख रहा है, जो कहीं से भी आप लोग जुड़े हैं, तो लाइक वेरी वेल अंजलि जी सेड एंड इवन आई वुड से दैट दिस प्लेटफॉर्म गिव्स यू एन ऑसम अपॉर्चुनिटी. एक सेफ स्पेस है जहां पर आप अपने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर सकते हो. आपको एक गाइडेंस मिल सकता है. आपको एक काफी लोगों को ये होता है कि एक करियर में ब्रेक लेते हैं, बाद में रिस्टार्ट करना पड़ता है. जैसे अंजलि जी ने भी बोला कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड ऑल दैट उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया, बीच में when her kids were small थोड़ा ब्रेक लिया, बाद में फिर से उन्होंने रीस्टार्ट किया. तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे काफी मदर्स ऐसे हैं, तो दैट्स वेरी नाइस टू सी कि वापस फिर से शुरू कर सकते हैं. तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि जो भी चाहता है कि वो लोग इस ग्रुप से जुड़े, मदर स्पेशली इस ग्रुप से जुड़े और खुद की जर्नी को एक बेटर बनाए, थोड़ा प्रोएक्टिव बने एंड यू कैन मूव ऑन. लाइफ इज अवेटिंग यू. एंड हम लोग एक मदर्स डे के लिए एक अच्छा सा इवेंट कर रहे हैं, बड़ा इवेंट कर रहे हैं.
उड़ान नाम से। तो दिस इज स्वनिर्भरता, निर्भरता से स्वनिर्भरता की ओर। तो हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बने, इसके ऊपर पूरा लेके जा रहे हैं हम लोग प्रोग्राम को। तो कमेंट बॉक्स में आपको इसकी लिंक्स मिलेंगे, तो प्लीज उन लिंक्स के थ्रू आप जरूर से ज्वाइन करें इस ग्रुप को। And we will be more than glad to have you along with us and learn from you also. So thank you for joining us, and thank you Anjali ji for a beautiful conversation. Thank you so much. Thank you. Thank you Good so day. much. Yeah. Good day. Viewers. Thank you so much. Good day.